सो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है जहां पर हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम बड़े लोगों के बारे में सीखते हैं, सक्सेसफुल लोगों से सुनते हैं, तो काफी लोगों के मन में हिचक होती है कि यार वो बड़ा हो गया है इसलिए बोल रहा है, वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। काफी सारी चीजें कई बार अलग अलग लोग कहते हैं। बट ये एक ऐसी सीरीज है कि हमारे वैसे में मानता हूँ कि अगर कोई -6 -7 -8 है तो वो बहुत बड़े लेवल पर है। Until somebody is working to get to those levels, whether it's a -3, whether it's a 6A2, whether it's a 6A or even upcoming 6As as we have in today's case, हर लेवल पर एक ऐसा व्यक्ति से हम सीखने वाले, एक ऐसे व्यक्ति से हम सुनने वाले हैं जो ना सिर्फ ये बोल रहा है, सिखा रहा है, बट एट दिस करंट पॉइंट वो उसे खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये इसे अपने आप अपना भी रहे हैं, आगे भी उसे लेकर बढ़ रहे हैं। इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, and that is Mrs. Akanksha Chandan with us over here. एक बार जोरदार ताली आकांक्षा जी के लिए मारते हैं। Digital claps, live claps, everything we can. Let's give her all the energy and positivity for giving her best shot over here. We've all known Akanksha ji for the longest time. We're gonna hear her journey as well. But अगर मैं आपको बताऊं, आकांक्षा जी has been in the education sector for a very very long time. उसके पहले भी उन्होंने काफी high profile jobs and a lot of वो बताएंगी उनके बारे में। But if I say one thing, the last place she was working on was at a very high position in the Birla Group. बिरला ग्रुप के जो स्कूल्स हैं उनके पास 100 के ऊपर से स्कूल्स हैं। मोर देन 50% ऑफ द स्कूल्स वर लेड बाय आकांक्षा जी। शी इवन डिजाइन्ड द करिकुलम that was happening for the children over there. So again, a very very well established lady who's gotten into our Kangen business. And yeah, Akanksha ji, a loud round of applause to you. All the very best for the sharing you're gonna have, and the stage is all yours. Thank you. Thanks a lot, Rishabh. First of all, I really want to say a big thanks to you for giving me this opportunity and, acknowledging me as an upcoming leader. The journey has been amazing till now. और अभी राजेश जी को सुनने के बाद तो मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि हाँ उनके साथ अभी यहाँ पे आई एम गेटिंग शेयरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू टॉक इज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी. I'll Trust me, again, you earned it, most of the people, Akanksha of ji. course. I'm just giving you the platform you all deserve. Trust me. Thank you. So, most of the people know me, but then still, I would like to share one interesting thing about me, which I would like to highlight before I start talking about my business journey. I'm born and brought up in Delhi. Education has been my career throughout, and I belong to a service class family. My mother had been a teacher, my father was an engineer throughout the life. A business family was nowhere in the extended family also. Maternal side, paternal side, service class था. That is how I have grown up. तो ऐसे होता है ना, हम एक अलग world को belong करते हैं. We belong to service class, and there is a different kind of system wherein people do business. For me, when I'm sharing my journey with you, I think I would be talking more on the lines how Kangen came to my life, then how business came to my life, and what I have learned in last 1.5 years. How Kangen came to my life, I have shared a lot of time. Quickly, I'll share that. Mostly लोगों को किसी ना किसी अपने ने Kangen introduce किया और ये बोला कि एक अच्छी चीज है, try करो. मुझे introduce just 1 second. Sorry, I was on mobile and my mobile got excited because I'm talking to it, my mobile. So mostly लोगों को किसी अपने ने introduce किया है. मुझे introduce किया who really loves me most in the world. That's my God. I was introduced to it in 2016 October. 2000 March 16 March में India में company आई, and I'm the blessed person who was introduced same year to this product by somebody who was a total stranger. Sudesh Kalia ji had come to my boss to meet my boss and give a demonstration to him. I was just sitting at a corner, had an opportunity to overhear. उन्होंने बोलना शुरू किया. He was always as amazing as he is now. By the time he finished, I knew this is something I want. I had certain challenges at my home. My husband had severe GARD issue. I had a cancer history in my family. My daughter was just 2 years old. My mother-in-law 72 years old. पानी से easy कोई चीज नहीं है. और I'm a Punjabi married in a Gujarati family. कोई मुझे बोले पानी पी के healthy रह सकते हैं और बीमारियां खत्म हो सकती हैं. I fell in love with it. I immediately knew I wanted that product. But was it easy to get the product? हम आजकल बहुत लोगों को मिलते हैं
जिनको जानते हैं उनको भी जब बताते हैं ना, हमें रीजंस मिलते हैं कि नहीं चीज अच्छी है, पर वाइफ को पूछना है, हस्बैंड को पूछना है, पापा को पूछना है, मम्मी को पूछना है। आई मेट 2 पीपल जिन्होंने मुझे बोला मदर इन लॉ को पूछना है। तो सिमिलर चीज मेरे साथ भी हुई थी। आई सॉ द प्रोडक्ट इन माई ऑफिस, वेंट बैक होम, टोल्ड माई हस्बैंड अबाउट इट, एंड हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज, तुम पागल हो, 3 लाख का पानी का मशीन होता है? ऐसे नहीं होता है, और कुछ बहुत अमेजिंग सा मैंने आज देखा। हाँ, नेक्स्ट डे विद हिम आई वेंट टू सुदेश जी's हाउस, वी सॉ द एंटायर प्रेजेंटेशन अगेन, ही लव्ड इट। बट देन नेक्स्ट हर्डल, मशीन ऐसे नहीं आ गया, नेक्स्ट हर्डल, आई एम अ पर्सन हु सीज द वर्ल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट। पसंद है तो चाहिए, नहीं पसंद है तो दुनिया में कोई कन्विंस नहीं कर सकता। I'm a Punjabi who loves shopping and love grabbing things the moment I want. My husband is a proper Gujarati finance guy. किसी भी चीज को ठोक पीट के चेक करके पैसा जल्दी से नहीं डालते। चीज अच्छी है आकांक्षा, लेकिन आई थिंक वी शुड वेट, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, करते हैं। नहीं, मुझे तो चाहिए। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन, सो फाइनली व्हाट मी ही सेड, आई रियली लव हिम फॉर दैट, वी हैव फाउंड अ कॉमन ग्राउंड वेयर इन ही सेड ओके तुम्हें लेना है तुम ले लो, मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। आई सेड ओके। आई हैव शेयर्ड दिस आल्सो सो मेनी टाइम्स। मैं उस टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब में थी जहां पे मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिला था। आज जब मैं आई वाज जस्ट प्लानिंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स आई वांट टू टॉक अबाउट कि मुझे कैंगन ने क्या दिया है, तो मुझे एक चीज रियलाइज आज हुई कि कैंगन ने मुझे सबसे पहली चीज पता है क्या दी थी? I was stuck in a job wherein I was not getting my salary for 3 months. I was happily going because I enjoyed my work. Kangan ने मुझे reason दिया that Akanksha, if you want me, shift your job to a company wherein you're getting salaries on time. Just because I wanted Kangan desperately, and Miri told me you have to get it on your own. I started giving interviews, and I was getting a call from Yash Birla's Birla Edutech. I took the interview. I got the job. Next 2 months, I got my Kangan. Kangan came to my house. It was best decision of my life. Within few months, everybody started. I became the star. Had friends. We had a cancer his patient who got healed in my family. Severe acidity issues, mama skin allergies. So many benefits कि ये तो समझ आ गया चीज बहुत अच्छी है, and as in terms of health, this was the best decision of my life. बहुत टाइम से मेरे पास ये है, और मुझे उसके बेनिफिट्स पसंद है कि सुदेश जी जानते हैं कि मैं हमेशा इसके बारे में बात जरूर करती थी। आई वॉज हेड ओवर हील्स इन लव विद कैंगन सो मच कि मुझे सुदेश जी बहुत बार बोलते थे, तो ऑलरेडी एजुकेशन में है, बात करती है इसके बारे में, व्हाई डोंट यू लीव योर जॉब एंड कम इन टू गेट इनटू कैंगन बिजनेस ऑल्सो? You're already talking about it, educating people. Come into the business, no? You will do really well here. But service class, when you belong to service class, आप लोगों के पास कुछ comfort zones होते हैं, आप वो नहीं छोड़ सकते। आपके पास एक फिक्स सैलरी आ रही है, आपका रोज का एक फिक्स रूटीन है, टेंशन नहीं है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, आपको लगता है ये चल रहा है, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? दिल करता था बहुत बार, नहीं कैंगन बहुत अच्छा है, मैं सेशंस भी अटेंड करती थी उस टाइम पे, बिजनेस में नहीं भी थी तो भी मैंने ट्रेनिंग्स भी अटेंड की हैं, मैंने इवेंट्स भी अटेंड किए हैं, बिकॉज आई ऑलवेज लव शेयरिंग माय टेस्टिमोनियल्स। लेकिन आज मैं इसको एडमिट करना चाहूंगी, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड, एंड आई वुड रिक्वेस्ट लॉट ऑफ पीपल हियर, ऑलमोस्ट ऑल पीपल हियर, टू नॉट डू इट। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे इसका बिजनेस करना है, प्लीज गेट इनटू इट एज सुन एज यू वांट। बट यस, हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट आता है, मेरी लाइफ में भी आया। पोस्ट कोरोना आई वेरी क्लियरली रियलाइज कि जो मैं अभी कर रही हूँ वो मुझे लाइफ में सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। पोस्ट कोरोना आई रियलाइज दैट फर्स्ट, आई डोंट हैव एनी रिटायरमेंट प्लान्स फॉर मी। मैं जब तक काम कर रही हूँ, जिस दिन मुझे कुछ हुआ या आगे जाके when I'm not capable to run around the way I'm running around right now, I have no support, I'm not secure. Second, I realized मेरे पास मेडिकली या कल को if God forbid something happens to me, I have no financial security for my daughter Aradhya. I had a certain term insurance, बट अगर मुझे कुछ हो जाता है आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, आराध्या जब 18-20 ईयर्स की होगी, उसको जब जरूरत पड़ेगी, वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने रियलाइज की, स्पेशली बिकॉज आई वाज वर्किंग विद बिरलास, टाटास, बड़े बिजनेसमैन में और हम में सर्विस क्लास में क्या फर्क हो जाता है?
हम कोई कम एफर्ट तो करते नहीं है उनसे, ज्यादा नहीं करते तो कम भी नहीं करते. बट आई हैव नो लेगेसी टू बी लेफ्ट फॉर माई चाइल्ड. No professional legacy. मैं जितना मर्जी मेहनत करूं, I started as a teacher, I became head of a content team, taking care of so many schools. But my daughter will start the career from scratch because I have nothing to hand over to her. It was the biggest realization, and that was the turning point wherein I decided I'm resigning and I'm completely full-time coming into business. Last year, it's been 1.5 years. I am a global energy distributor. I'm representing a company which is 50 years old, multinational company, and I'm so proud of it. I again say this was best decision of my life. Now, what Kangen gave me as a business, health के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, but today I want to talk about what I have received from Kangen business in last 1.5 years. First and the most important thing, which I think most corporate people will resonate more, and I think it is applicable to even business class. Clear career path for your future. हम जब बिजनेस करते हैं तो हम प्लान्स बनाते हैं, ऐसे 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 इसको मल्टीफ्लोर ग्रो करेंगे, लेकिन वो प्लान्स होते हैं जो बेस्ड ऑन हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं. अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो हर कंपनी का एक हायरार्की अलग रहता है, ग्रोथ कल्चर अलग रहता है. जब आप इंटरव्यू देते हो और एचआर के पास बैठते हो तो आपको केआरएस और केपीआई का एक अच्छा सा जाल दिखाते हैं जिसके बेस पे आपका ग्रोथ होना होता है. लेकिन जब प्रमोशन और अप्रेजल का टाइम आता है तो पिक्चर बहुत डिफरेंट रहती है. द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट कैंगन and I didn't miss from my corporate was the moment I stepped into the business, I had a clear career path which was universally applicable and was proven across the globe. And I love it. Second, मैं वहां से एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन से जब यहाँ आई तो यहाँ पे भी जो मेरा डेजिग्नेशन बन रहा था, जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी, आई वाज एट अ वेरी गुड लेवल. I tell everyone that I'm a global distributor of a multinational 50-year-old company, and I have business expansion across the globe, and I want to more people to join me and let's work together. तीसरी चीज जो मुझे यहाँ मिली, being a female, I think it means very much, very very much important to me is I got a very beautiful work life balance. One of the reason मैं decide कर पाई कि मुझे ये जॉब छोड़ना है was जब हम जॉब छोड़ना चाहते हैं ना, जब भी हम जॉब में होते हैं और हम बिजनेस में आना चाहते हैं तो बाकी फैक्टर्स तो होते होते हैं, फैमिली का भी मिक्स रिएक्शन आता है. कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ फॉलो योर ड्रीम्स, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट पीपल हु रियली लव यू एंड केयर यू एट टाइम आउट ऑफ कंसर्न दे टेल यू डोंट लीव योर जॉब, try doing it along with your business, which is absolutely fine. I'm currently working with a lot of people who are doing energetic part time, but it was not for me. Why? I realized I was already into 2 full-time jobs and Kangen became my third. My first job was I was working with Birla Edutech. I was the content person. Second, I was a full-time mother. Kangen became my third job. अभी वो मदर वाला जॉब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता बिल्कुल भी. So I decided ये तीन का जगल बहुत ज्यादा हो रहा है. If I really want to genuinely do justice to my work and my business, I decided to be full-time into my business. And I never regretted that because the moment I got into my full-time business, I got a beautiful work-life balance. I was able to give time to my family. I was able to be present on all important timings when Aradhya needed me. मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं हर काम के लिए छोड़ के यहाँ रह सकती हूँ, लेकिन एक प्रिविलेज जो मुझे नोट की है वो ये है कि जब आराध्या को मेरा टाइम चाहिए, my family needs my time, even if I had a planned meeting, I had a beautiful support from Business Beyond Boundary. I had a beautiful support from Kalia family. If there was an emergency, last moment plan change, they always stepped in and supported me. ये कहीं available नहीं है. This is only possible with BBB. This business gave me an opportunity to meet people from all walk of life. जब मैं बिरलाज में काम करती थी, एजुकेशन सेक्टर के लोगों से मिलती थी. पिछले 1.5 साल में मैं सब्जी वाले, भाजी वाले, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स, जज, corporate people, retired people from Mantralay, housewives. In fact, recently I met a very renowned Supreme Court judge in his own chamber in Fort. इनफैक्ट जब मैं वो मीटिंग के लिए गई थी ना तो मैं उस दिन ये सोच रही थी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैंगन दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉक इन एंड बी हियर, lot of security, and I got to meet this person. This was possible because I am associated with the right product, the right company. This is the only place wherein I am learning
a lot every single day when I'm earning money, when I'm earning blessings, when I'm earning an extended, beautiful family. This is something again not possible in any corporate or any other business job. Thanks to Kalia family, thanks to leadership of Girish जी, एक एटमॉस्फेयर है यहाँ काम का जो बहुत ही ब्यूटीफुल, एथिकल, courteous, वेरी कॉर्डियल एंड सेफ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि अगर मेरे जैसी लेडीज भी हैं, वो अर्ली मॉर्निंग मीटिंग से लेके शाम तक की मीटिंग पे काम कर रही हैं, दे आर ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइडेड. Somebody recently asked me, Akanksha, was it an easy journey? मुझे भी थोड़े दिन पहले किसी से बात हुई थी, उन्होंने मेरे से पूछा, somebody asked me, Akanksha, you took a decision to leave your job and come into business. Do you think it was a right decision? कभी ऐसा हुआ 1.5 साल में that you regretted this decision कि नहीं लेना चाहिए था, या जो तुमने सोचा क्या वो तुम अचीव कर पाए? बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, आई एम श्योर शायद कुछ लोग मुझसे पूछना भी चाहते होंगे. आई वांट टू टेल यू वन थिंग हियर ऑन द प्लेटफॉर्म. Not a single day has passed wherein I regretted my decision. It was one of the best decisions of my life. But yes, the way I planned things have not been exactly like that. And उसके लिए भी मैं आपको ये बोलूंगी, वहां भी मेरा रियलाइजेशन ये है कि जब आप जॉब छोड़ के आते हो और आप प्लान करते हो ना, we plan the things we wish. God gives us the thing which we need. I got much more than what I wished for, but I received all what I needed to be able to grow and prepare a platform for my business. I'll quickly say here, I have few learnings here in 1.5 year last. And since I'm being looked upon as an upcoming leader, I would love to share these, learnings with all the people who want to grow in this business. थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और आई वुड लाइक टू बी रियली क्रिस्टल क्लियर, और मैं चाहूंगी यहाँ थोड़ा सा आप सब अटेंशन दीजिएगा. ये मेरी साथ लर्निंग है. आई वुड लव टू नो योर फीडबैक ऑल्सो अबाउट इट, बट आई पर्सनली फील कि ये 7 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप कैंगन को एज अ बिजनेस देखते हैं. एंड यूजर रेफरेंस पे काम करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप कैंगन को बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं, ये 7 चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ फॉलो हुई तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा. शायद मैंने जो 1.5 साल में किया, थोड़ा अपनी गलतियों से सीखा, थोड़ा दूसरों की गलतियों से, आप लोग जल्दी से सीख के फास्ट काम कर पाएंगे. द फर्स्ट थिंग इज, द मोमेंट यू आर गेटिंग इनटू कैंगन एज अ बिजनेस, प्लीज गेट कंप्लीट क्लैरिटी ऑन योर व्हाई. आप बिजनेस में क्यों आ रहे हो? अगर आपका वो क्लियर नहीं है और सब कर रहे हैं इसलिए आ रहे हो, तो आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे. डेफिनेटली देयर विल बी सम डेज विल बी लाइक नहीं हो रहा, चलो वापस जाते हैं. लेकिन अगर वाई क्लियर है तो वापस जाने की नौबत कभी नहीं आएगी. सेकेंड थिंग विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ये वाई है ना, वो कभी भी आपकी करंट प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. You should not choose Kangen as an opportunity because of the problems you are facing currently. I'll try to explain myself. अगर आपको ये लगता है यार अभी वाली जॉब है ना, सुबह बड़ी जल्दी उठना पड़ता है, शाम को बहुत लेट आता हूँ, लाइफ में ट्रेवल बहुत है, मैं छुट्टियां प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, इनकम रेगुलर नहीं है, मुझे इतना ट्रेवल करना पसंद नहीं है, तो प्लीज प्लीज देन दिस शुड नॉट बी द रीजन कि हाँ मैं कैंगन बिजनेस में आता हूँ अभी ये सब सॉर्ट हो जाए. क्योंकि अगर आप ये सब सोच के यहाँ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ आते ही मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा, पहले दिन से मैं जब दिल करेगा सो के उठूंगा, वीकेंड पे काम नहीं करूंगा, सिर्फ वीकडेज में करूंगा, जब दिल करेगा हॉलीडेज लूंगा, तो आपको ये बिजनेस में जो सोच के आए हैं ना, वैसा सा इमीडिएट कुछ नहीं मिलने वाला. जब आप बिजनेस में आ रहे हैं, आपका वाई शुड बी, आई टेल यू माई वाई. मेरा वाई, मेरा जॉब से मैं सब खुश थी, एवरीथिंग वाज क्लियर. माई वाई वाज जस्ट वन सेंटेंस, I want to have a beautiful life wherein I'm spending time with my daughter. By the time she's 13, I want to reach a place wherein I can be completely relaxed and enjoy my life with her. And I'm seeing that coming true from day one. I'm able to spend time with her. There are times I can even take her to my events and meetings. So this has given me this opportunity. आपका वाई क्लियर है, आपके रीजंस क्लियर हैं, लेकिन जब आप कैंगन जर्नी स्टार्ट करते हैं, प्लीज बी रियलिस्टिक. Be very realistic in terms of things. For example, first 90 days जो आप अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट 90 डेज शायद कंटिन्यू हो और शायद थोड़ी सी बढ़ जाए. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 90 डेज में आपको हो सकता है थोड़ा और एक्स्ट्रा अर्ली मॉर्निंग्स या इवनिंग में जाके लोगों को मिलना पड़े,
वीकेंड्स जो अभी तक आप सो रहे थे, उन्हीं वीकेंड्स पे जाके आपको आप लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़े। अपना हॉलीडे प्लान जो आप बना रहे थे, अभी आपको लगे नहीं अभी ये इस महीने हॉलीडे नहीं लेना है, काम करना है, काम करना पड़े। आपको पूरी टीम का सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्ट आपके हैं तो पहले 90 दिन आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले 90 डेज रियलिस्टिकली काम किया, आई प्रॉमिस यू इट विल वर्क फॉर यू। When I say being realistic, one more thing which is very important is, अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देख रहे हैं, this is something I want to tell my team and every team here. Start attending all your events and trainings. अगर आप इवेंट और ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, तो आप एंड यूजर है, फिर आप सब रेफरल्स दीजिए। क्योंकि अगर बिजनेस है तो ओनरशिप होनी चाहिए। द डे यू अटेंड एन इवेंट, आपका इवेंट है ना, आप ही अगर वहां नहीं है तो फिर आप ओनर नहीं है। कभी कोई ऐसा इवेंट होता है कि ओनर वहां नहीं हो। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं तो आपका इवेंट में होना जरूरी है। इवेंट में आइए, आपके गेस्ट हैं तो उनसे मिलिए, आपके गेस्ट नहीं है तो बाकी गेस्ट के साथ अपनी टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। आपकी टेस्टिमोनियल पे दूसरों के सेल्स क्लोज होंगे, दूसरों की टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कीजिए, आपके सेल्स क्लोज होंगे। आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। मैंने सेब बेचा, लेकिन जिस दिन सोना बेचना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। आप किस फील्ड से आ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, फर्क नहीं पड़ता, सीखना जरूरी है। इसलिए इवेंट के साथ हर ट्रेनिंग अटेंड करना भी जरूरी है अगर आप बिजनेस में हैं। नेक्स्ट, जब हम सीखने की बात करते हैं, लर्न टू आस्क अ लॉट। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते तब हैं जब जरूरत पड़ती है। मैं ये कहूंगी पहले 90 दिन अगर बिजनेस में आए हो ना, आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन। Ask your upline, ask your parallel people, ask your Google, ask all the content you have in hand, and ask not to rely on these people, but to learn and be independent. अब ग्रुप पे मैसेज डाल के अच्छा मुझे कोई टेस्टिमोनियल भेज दो, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, नहीं। आस्क द क्वेश्चन टू बी इंडिपेंडेंट कि मेरा बिजनेस है, मुझे कल को क्या करना है। राजेश जी ने जैसे कितना ब्यूटीफुली बोला, he was very, from the very initial stage he started preparing for being independent, और वही चीज आगे जब उन्होंने कल्चर में दी, that contributed in his growth. एक रियलिस्टिक सी चीज है जो मेरी लर्निंग है, आई डोंट नो सब लोग रेजोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये भी चीज मैं चाहती हूँ कि सब लोग ध्यान में रखें जब आप बिजनेस में आते हैं। हम स्पेशलिस्ट की बात कर रहे थे, फैमिली एक्विंटेंस होते हैं, वो कैटेगरी क्या है वी ऑल नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट एक चीज मैं चाहती हूँ कि जब आप बिजनेस में आए ना, यहाँ से रियलिस्टिकली क्लियर होके आए कि आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं, जब आप उनको बताते हैं, आपको उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कोई चीज, ये चीज क्लियरली दिमाग में रखिए कि बिजनेस आपका है, जरूरी नहीं उनका भी इमीडिएट हो जाए। जरूरी नहीं हर इंसान आपके साथ वो पहले 90 डेज में जिसको बताया वो आपके साथ जुड़ता जाए, जिसको बताया जाए वो आपके साथ बिजनेस करता जाए। ये एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो बिजनेस में आते हैं बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और बाद में जब वो क्लोजिंग नहीं होते तो डिसहार्टन होके पीछे हो जाते हैं, अरे यार अपने Last 5 minutes. मेरे साथ जुड़ रहे तो और कौन जुड़ेगा। मुझे बहुत लोग थिंक मेरे साथ अभी कुछ लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं हमारा तो आकांक्षा सर्कल ही नहीं है ऐसा, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू डू बिजनेस। आई क्लियरली टेल देम अपने सर्कल में बिजनेस करना ही नहीं है। आज अगर मैं एक बुटीक खोलती हूँ और मैं उसके ओपनिंग पे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, पहली ओपनिंग पे आके वो ड्रेस खरीद लेंगे, बट इज इट फाइन इफ आई एक्सपेक्ट कि अभी आज के बाद से इनकी सारी ड्रेसेस, इनके पूरे एक्सटेंडेड फैमिली की ड्रेसेस मेरे बुटीक से जाएं? नहीं ना। तो फिर हम ये क्यों सोच लेते हैं कि मेरा सारा बिजनेस ठीक से इन्हीं लोगों से बनेगा। सो जब आप बिजनेस में आए, प्लीज वेरी रियलिस्टिक। ये लोग भी हैं, इनको तो ऑफकोर्स बताएंगे अपने हैं, लेकिन इसके बाहर भी काम करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, जैसे वही बात मैंने भी यही चीज, मेरी भी लर्निंग है, राजेश जी की भी यही है, अगर जितना जल्दी आप टीम बिल्डिंग काम शुरू कर लेंगे, टीम को बिल्ड करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी काम होगा। My journey has been beautiful. I have learned a lot. मैं सेल्स में नहीं थी, टीचर थी जिनको बताना आता है, लेकिन बताने के बाद फीस तो मांगते नहीं ना हम, तो एजुकेट करती थी शुरू में, चेक मांगना सीखना पड़ा। मैंने बहुत कुछ अनलर्न किया, फिर लर्न किया है। आई एम होल हार्टेडली थैंकफुल टू एंटायर कालिया फैमिली, होल हार्टेडली थैंकफुल टू बीबीबी, जहाँ हर जगह वो मेरे साथ सपोर्टिव रहे हैं, मुझे हर जगह लर्निंग दी है। कुछ चीजें मैंने पूछ के सीखी हैं, कुछ उन्होंने ही मुझे ऑब्जर्व किया कि हाँ इसको ये सिखाने की जरूरत है, तो सपोर्ट किया। फील ब्लेस्ड दैट यू आर पार्ट ऑफ द राइट company, right team. Be ready to learn and grow. I'll here summarize my entire journey by saying one thing. There is no better business right now than Energic Business. There is no better team right now than Business Beyond Boundaries.
And there is no better time than for starting this business than now. We are on a beautiful platform. Rocket शूट करने को तैयार है 2024 के लिए पूरी बीबीबी टीम करना है. This is the right time. So let's build business together. Let's grow together. Let's enjoy together. With this, I'll end my session or whatever I have to share. Thanks a lot, Rushabh. It has been a pleasure being part of this team. And thanks a lot for this, giving me this opportunity to share my journey with everyone. Thank you everyone for listening. अगेन एक बार जोरदार ताली हम अपने अपने घरों पर मारते हैं. मैं एक्चुअली थोड़ी जोर से ताली अपने घर पे मारूं. भले ही म्यूट है, यहाँ पे एनर्जी पहुंच जाती है. ऐसी वाली ताली में ना एनर्जी नहीं आती, वो फील नहीं आती. सो आई थिंक जोरदार ताली एक बार आकांक्षा जी के लिए फॉर एन अमेजिंग शेयरिंग. डिजिटल ताली, राइट? यहाँ से सबको नैना जी ने भी बोला है कि डिजिटल तालियां सबके लिए बनती है. सो आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स जो आकांक्षा जी ने कही वो बहुत जरूरी है. आई थिंक वन बीइंग वेरी द की अमंग्स देम ऑल इज बॉस, धंधा किसका? हम हमेशा ये सवाल पूछते हैं, धंधा किसका? और जवाब हमेशा आता है मेरा. तो अगर धंधा आपका है, बिजनेस आपका है, ग्रो आपको होना, तो करना भी आपको ही पड़ेगा. Right, so I think before I invite the next speaker for today, I'd like to just emphasize on one thing. आप अपने सीनियर्स को, आप अपने मेंटर्स को, आप अपने अपलाइंस को, या जो भी आप उन्हें बुलाते हैं, आप उनके साथ जब मीटिंग करते हैं, आप इसीलिए कीजिए ताकि आप सीखें. नॉट बिकॉज आपको नहीं आता है, उसको आता है तो वो कर ले, मैं बैठ के क्लोजिंग एंजॉय करूंगा. The goal of them being involved in any meeting is only so you learn what they are doing. As simple as that. If we can do that, I'm sure if they can do that, you will definitely be able to pick it up. So I think a big congratulations to Akanksha ji for earning this spot for herself. And I think an amazing sharing by her, and definitely looking forward on hearing more and more as we move forward in her candid journey, right? So thank you so much, Akanksha ji.